May the peace of the Lord and grace and Holy Spirit be with you all. All my brothers and sisters here, national and internationals. We praise and honor His glorified name, Lord. Father, thank you for this wonderful opportunity, this privilege that once again that you have called us in, so we can approach your throne of grace with the praise and thanksgiving, O Lord. Come before the throne of grace by giving you all the honors and glories of praising your name, Lord. Father, for this beautiful day and beautiful times. Thank you for your divine protection, and thank you for your pure, precious Lord Jesus Christ. Thank you for your salvation. We worship and glorify your name, Lord, and thank you for your abundance, goodness, mercy, and thank you for everything, Lord. There's many, many things to thank about, Lord, Father. We don't know, but all of all, what you do for us, Lord, and your intent to do for us, Lord, and keeping us safe and sound. We bless and praise and glorify your name, Lord. We give you thanks and praise. Thank you for the prosperity. Thank you for this wonderful platform that you have provided us through that we can, the church can gather here and worship and glorify your name, Lord. Father, we pray for the people's, many of your churches away from here, Lord. Bring your church here so we can gather here, Lord. You bless them abundantly, bless their hearts and be with them, Lord, Father. And let everybody comes together and we can all worship you, glorify your name, Lord. Once again, Father, come and take a charge, pour your Spirit on, breathe, and keep your Holy Spirit grace on. So Holy Spirit, come take a charge, and Holy Spirit, let's set the stage for the Father, for the presence of the Lord Jesus Christ, who will be among us, who said, yeah, I will be among you where one or two gathered in my name, Lord. And we have faith that you are among us, Lord. You are with us, Lord. And we honor and glorify your name, Lord. Once again, Father, take a charge and let our spiritual eyes be open and our ears be open so we continue to hear your voice and we obey that, Lord. And during this time, Father, people, your children, your servants, wherever they are, you keep them all safe and sound under divine protection. And everybody be blessed. Bless everybody's, Lord, and bless their hearts towards each other, Lord, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. We were talking about the women's are we're talking about the series. We started a series about the women's are the possessions or the treasures of the Lord. So we can see so many women's are in the Bible's history. In God is when we know that the God does not do partiality and His Holy Spirit does not do partiality, and many are still thinking the women's they see the women's differently as God see the woman differently because she was created onto the image of God, and God never does the partiality, whether that the women's or He looks women, a male and female as mankind, and the women's is also a mankind. So God's never does the partiality, and we can see there's like so many women's in the Bible's inspirations. We can see the women, how Eve was created, and she was created differently from the Adam, and she and the God, when there was a time for the punishment, God punished her. Because God said the woman is so delicate and He just want to keep her under His protection. But then woman has she has like so much divine like a divine nature of the God, the dwelling of the divine natures of the God in the woman. So God loves the woman, and he that does not mean He does not love the man. He loved mankind. So but there's a different place for there's a different essence in the woman's than the man. So but we see the hero of the Bibles. The women's are also the heroes of the Bibles, and a very prominent. We can see many Deborah, Hannah, Phoebe, Miriam, Moses' sisters. We can see many other women, the women of the faith, the women of the God, and they were not just the women of the God. They were prophet, they were judges, they were they're leading, and they were in the church, and they were working in the church as a leader. So we can see the Deborah. We'll talk about Deborah's today. Deborah is
here I was reading on the side and see the Deborah, woman of the inspiration. Somebody said Deborah is the woman of inspirations. Deborah in the Bible was a woman of inspiration. She was a daughter of God who not only listens to God, but also did what he asked her to do it. खुदावन ने जो वो ना के सिर्फ खुदा की बेटी थी और खुदावन ने जो उससे काम लेना था वो खुदावन की हर आवाज को सुनती थी और उसने वही एग्जैक्टली किया जो खुदावन ने उससे चाहा. So that means like she was a woman of God. She was the daughter of God. As according to Paul, we say we all are sons of God, regardless of the genders. We are the son of God. That women's and the men's included in there, and we are the children of God in the Christ. And there is no partiality. There is no oppression for the women, and you can see in the divine nature, the woman is carrying more God's divine natures than the man, because every successful man, there's a prayers behind the man, woman's behind that man, because she is the one who prays. And then many times the woman has so many, God has crowned her with so many titles. She's not mother, she's mother, wife, daughters, and she's sisters. And she also become a mothers of the husband too, because the husband sees the mother, husband sees his mother and his wife. So nowadays the woman's also, the wife is also the second mother of the husband, because she can tolerate him and she can straighten him. She is behind him. If he's a strong, if he's a successful, because of the mothers and because of the divine nature wife behind it. So she was a woman. We're talking about Deborah. She was a woman we can all be inspired by and learn from her. She served ancient Israel for 65 years, not just the 1-2 years. She served the ancient Israel as a judge, being the woman of God for 65 years, a mighty warrior. She was a mighty warrior. She was leading the Israel at that time. She was leading the Israel's army as well. She was a mighty warrior. She was a judge. She was a prophetess. And she was a minstrels too. She was telling the prophecies. She was doing the ministerial works too. And Deborah is not only a female judge in the Bible, excelled in the multiple areas. Clearly one of the Bible's most outstanding figures. She serves in, like I said, she served in ancient Israel. She was also more than that. She was just not the woman of God. She carried, God made her carry so many titles for ancient of Israel. God used her. So today, if the men say, you know, the women's, we're talking about the Old Testament women, but in the New Testament, there's other many women's are mentioned in the Bible. We continuously talk about all women's, and I have started the series, I started the series of that today. The women's are the possession or the slave, or they are the treasure of God. So women's are the treasures of God, and they're not possession. They're not nobody's possession. They are treasures of God, because she carries the divine natures of God within her. And that's why God speaks to her all the times, and she can turn the world ups and down. The woman's the warrior. So she fused herself in the roles of prophets, nation leaders, and military commander. She was a military commander as well. We can talk about the Deborah. We can see the first woman onto the mention in there. You know, there was many women before that. The Miriam, the brother of Moses, she was also the woman of God. She have seen the prophets. She has seen the future when she saved her brother from the water. She said that he will come one day. He will deliver us out from the Egyptian slavery. So God showed her. She was worshiping the Lord in the young age, and she was a prophet and delivering the ancient of Israel. The prophecy, what was she have? God has foretold. She's seen it. She's seen it when she put her
helped her mother to put her brother in a bucket and flow in the river. And then she saw where the brothers went. And we all know the story. So that was the greatest woman. And that's shown that she was the prophets. Miriam was the great prophets. So we will continue this series next tomorrow. And now we can wind up here, and we'll move towards our other Urdu sessions service. So I would say God bless you all. We'll see you tomorrow. उसने हमें संभाला है और वो हमें आगे भी संभालेगा। हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए, इस महफिल के लिए कि खुदावंद तूने कहा है कि ये सुनासी जहाँ पे एक दो और तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू ही रीजन है जिसकी वजह से हम इकट्ठा होते हैं खुदावंद, और कोई रीजन नहीं है खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद का कलमा है खुदावंद, और हम कलमे की प्यास में हर वक्त रहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावंद हम तुझे और पिए, हम तुझे और खाएं, ताकि आए खुदावंद हम जिंदगी पाए, कसरत से पाए। आए खुदावंद हमारी छुपने की जगह तू ही है, हमारी पनाहगाह तू ही है। वापस मानी यीशु जिंदा यीशु नासी, तू ही हमारी पनाहगाह है। वापस मानी तू आ और हमारे दिलों को खोल दे आए खुदावंद, हमारी आंखों को भी खोल दे, हमारी रूह को भी हमारे कानों को भी खोल दे आए खुदावंद। और आए खुदावंद तू हमें अपनी रूह कुदुस से भर, रूह कुदुस आ और चार्ज ले, ताकि आए खुदावंद हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करें और तेरी नाम की जय जयकार करें, तेरी हमद और सताइश करें। आए खुदावंद वापस मानी फिर से तेरा शुक्र अदा करती हैं कि जितनों ने हमें अटेंड किया है, हम सबके लिए, उन सबके लिए तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा फजल चाहती हूँ आए खुदावंद। और आए खुदावंद तो इसी तरह हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए ब्लेस कराए खुदावंद। इस टीम को आए खुदावंद इतना होली कर दिया है खुदावंद, ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करें। आए खुदावंद तूने आए खुदावंद हमें बुलाया, तू ही हमें मोल्ड करेगा, तू ही हमें शेप करेगा, तू ही हमें बताएगा, रूह ही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। और आए खुदावंद दुआ करती हूँ जितने पार्टिसिपेंट ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, हम उनके लिए भी तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बरकत चाहते, तुम सबके साथ, उन सबको मुबारक कर, उनके दिलों को, उनके दिन को मुबारक कर, उनके हर टाइम को मुबारक कराए खुदावंद। आए खुदावंद जहाँ पे भी ये तेरे बंदे खड़े हो, तू मौजूद रहे खुदा, वहाँ तू मौजूद रहो, तेरी हुजूरी हो, हमारी मौजूदगी से आए खुदावंद बाकी लोग भी आए खुदावंद बरकत पाए आए खुदावंद, और आए खुदावंद कसरत से पाए आए खुदावंद, और सबके लिए अपना रहमत और फजल वाले दरवाजे खोले रख और उन पर रहम कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से आमीन। आइए हम हमारे साथ रवि हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की प्रस्तश में कोई गीत गाएं। हालेलुया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆइए प्रभु ਦੀ महिमा वास्ते एक भजन गावाਂਗੇ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हाँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ, तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हाँ। जेना पर्दा मेरी हमी तू, जेना पर्दा मेरी हमी तू, किंज छड्डदा मैं गुलामी नू, किंज छड्डदा मैं गुलामी नू, तेरी दया बार बार है, मैं जो जिंदा हाँ, तेरी दया बार बार है, मैं जो जिंदा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਿਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ ਰਾਤ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮੇ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
आखिरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. बड़ी अच्छी वर्शिप है. मैं इस वर्शिप को हम जारी रखेंगे. मैं एक इंग्लिश में पढ़ूंगी तो मेरे पास है साल्वेशन पे के Psalm 21:6 say, surely you have granted him unending blessings and made him glad with the joy of your presence. And यही वर्स यसाया उसका 12 बाब यसाया का 12 बाब 2 to 3 verse say, surely God is my salvation, I'll trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation. किसके कहने का मतलब है कि ट्रस्ट मी खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ट्रस्ट मी एंड डोंट बी अफ्रेड फॉर आई एम योर स्ट्रेंथ इन सॉन्ग कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है हमें कि तुम किसी चीज से मत घबराओ मत डरो क्योंकि मैं ही तुम्हारी ताकत हूँ और मैं ही तुम्हारा गीत हूँ क्योंकि तुम्हारी ताकत मैं हूँ और मुझ पे भरोसा रखो और डरो मत think what is mean to have me as your strength सोचो कि मुझे अपनी ताकत हर वक्त ये सोचो कि तुम मुझे किस तरह अपनी ताकत तू ही क्योंकि तुम यही सोचो कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ हर वक्त इसका मतलब सोचो कि ताकत क्या हूँ मैं तुम्हारी I spoke the universe into existence कि then वो कहता है कि मैंने शुरू से स्टार्टिंग में यूनिवर्स से बात की थी I spoke to them and everything came in place कि अगर मेरे कहने से पूरी दुनिया मेरे मुंह के अल्फाज से पूरी दुनिया अगर कायम हो सकती है तो मेरे मुंह का ये भी अल्फाज है कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ मैं तुम्हारा सॉन्ग हूँ तो हमें इस चीज से कॉन्फिडेंटली चलना है क्योंकि खुदावन ने जो फरमाया है वो अटल है और खुदावन ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारी निजात की चट्टान हूँ मैं ही तुम्हारी ताकत हूँ मैं ही तुम्हारा गीत हूँ तुम्हारी खुशी का गीत तुम्हारी हर एक चीज की तुम्हारी जिंदगी की तुम्हारी सांस की तुम्हारी भलाई की हर मुश्किल में मैं ही तुम्हारी ताकत हूँ तो हम ये क्यों नहीं सोचते क्रिटिकली क्यों नहीं सोचते डीपली कि जिसने कहा है कि तुम क्यों वो बार बार हमें कहता है कि तुम क्यों घबराते हो अगर मेरे मुंह के अल्फाज से पूरी दुनिया कायम हो सकती है अगर मेरे मुंह के बोलने से तूफान रुक जाता है पानी जो है वो शांत हो जाता है मेरे बोलने से मुर्दा जिंदा हो जाता है और मेरे बोलने से मतलब जख्मी ठीक हो जाते हैं जिनको कोड़ है वो ठीक मेरे सिर्फ बोलने से ही होते हैं क्योंकि खुदावन ने सिर्फ अपने मुंह के अल्फाज ही कहने होते हैं तो उसने हमारे लिए इतने बड़े अल्फाज कह दिए हैं तो इससे हमारी क्या है कि हमें शांति से जीना है क्योंकि हमें है ना कि खुदावन ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ तुम मेरी तरफ मुड़ो मुझे पुकारो और हमेशा मुझे याद रखो कि मैं तुम्हारी निजात की चट्टान हूँ मुझे ना भूलना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं भूलता कहते कि मैं तुम्हें नहीं भूलता my power is absolutely unlimited कि मेरी जो ताकत है उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है there is no limit into my power into my speaking into my words कि मैं बहुत ही कुदरत रखता हूँ वो कुदरत वाला खुदावंद है कि जिसके अंदर इतनी कुदरत है उसके बोलने से ही हर चीज हो जाती है
और कहने का एक और मतलब है कि मैं एक जो खुदावंद के रूह ने मुझे बताया, मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई हमसे कहे कि अगर खुदावंद जमीन पर यीशु मसीह की सूरत में था तो पूरी दुनिया कौन चला रहा था, तो उनको हम सिंपली अल्फाज में बता सकते हैं कि वो अपने मुंह से ही चलाता है, चाहे वो आसमान पर हो, चाहे वो जमीन पर इंसान की सूरत में हो। उसने सिर्फ बोलना है और सब कुछ हो जाना है, क्योंकि वो आसमान से भी बोला था तो हर चीज प्लेस में आई, नीचे भी आके वो बोलता था तो सब कुछ हो जाता था। तो उसको सिर्फ बोलना ही है। उसने हाथ पकड़ के उसके हाथ में टूल नहीं है कोई भी, वो सिर्फ अपने मुंह से बोलता है तो सब कुछ हो जाता है। तो उसको वो मतलब बता रहा है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी मतलब पावर कितनी ज्यादा है, मेरी पावर अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। Human weakness consecrated to me is like the magnet drawing my power into your neediness. कि जब तुम वीक होते हो और मतलब तुम्हारी वीकनेस में मेरी पावर्स जो होती है वो मतलब मेरी पावर तुम्हारी तरफ ड्रा करती है। उसके कहने का मतलब है कि जब तुम वीक होते हो तो मेरी पावर्स जो है ना वो तुम्हारी तरफ, मेरे से खुद पावर निकलती है, तुम्हारी तरफ ड्रॉ कर रही होती है ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। However, fear can block the flow of my strength into you. क्योंकि मेरी पावर तब तक काम नहीं करती जब तक तुम डर में होते हो। जब तुम अपने अंदर से डर निकाल देते हो तो फिर मेरी पावर जो है ना तुम्हें काम करती है और अपना जलाल दिखाती है। Instead of trying to fight your fears, concentrate on trusting me. कि तुम अपनी डर को मौका दो कि वो तुम्हें दबाव बर्बाद करे, उस पर कंसंट्रेट करने की बजाय मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो, ताकि मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, जो तुम्हें ताकत बख्शेगा, जो तुम्हें हिम्मत देगा। कि किसी चीज से मत डरो। अगर कोई ऐसी चीज तुम्हारे पास आती है तुम्हारे आसपास तो तुम मेरी तरफ मुड़ो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी ताकत हूँ और मैं ही तुम्हारा खुशी का गीत हूँ। When you relate to me in a confident trust, there is no limit to how much I can strengthen you. कि when you relate to me, कि जब तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो, जब मेरी तरफ आ जाते हो, मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो कॉन्फिडेंट टू मी इन कॉन्फिडेंट ट्रस्ट, जब तुम ट्रस्ट करके मेरे साथ जुड़ जाते हो ईमान रख के, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच आई कैन स्ट्रेंथन यू, कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितनी ताकत बख्श सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी ताकत बख्शेगा कि हम जहाँ पे हाथ भी रखेंगे तो वहां पे मिरेकल होगा। खुदावंद हमें इस तरह चाहता है, इस तरह वो हमें तसल्ली दे, इस तरह वो बता रहा है कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या चीज है, कि खुदावंद जो है जिसने अपने मुंह से बोला है वो हमें इतनी तसल्ली देता है। उसने हमारे लिए इतने मतलब हमारी इंश्योरेंस के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी खुशी के लिए वो इतने इतने पावरफुल अल्फाज क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? मतलब उसको हमसे प्यार है, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसकी हमारे नथनों में उसका रूह, हमारे नथनों में उसकी सांसें हैं, उसकी हमारी जिंदगी की सांस जो है ना वो द ट्री ऑफ लाइफ, फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ व्हिच इज जीसस क्राइस्ट। रिमेंबर दैट आई एम आल्सो योर सॉन्ग, कि मैं ही तुम्हारा गीत हूँ। यीशु मसीह ही हमारा गीत है, हमें उसी को गुनगुनाना है, उसी की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वो हर बिगड़े हुए काम को सीधा करना जानता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं दुनिया में, उसको पता है कि मैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है वो यीशु मसीह है। I want you to share my joy living in a conscious awareness of my presence. Rejoice as we journey together towards heaven. Join me in singing my song. तो हम खुदावंद की प्रशंसा को जारी रखें। कितना खूबसूरत वादे हैं उसके, खुदावंद के हमारे साथ। हम ऐसे ही घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, शैतान हमें डराता रहता है, तो हमें डरना नहीं है, हमें पावर पकड़नी है, हमें हिम्मत पकड़नी है कि हमारी ताकत हमारी कमक तो खुदावंद की तरफ से आती है। हमारी ताकत, हमारी तसल्ली और हमारी ताकत खुदावंद ही की तरफ से आती है। आइए हम वर्शिप को जारी रखेंगे। हमारे साथ मारिया, मैं उससे कहूंगी कि वो खुदावंद की प्रस्तश में कोई गीत गाए, फिर उसके बाद रूथ हमारे साथ है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो।
हम खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम्म। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा, बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे रूह का मसा चाहिए। खुदावंद का रूह है, खुदावंद का रूह कुदुस है जो चर्च को, जिसने जो चर्च को लीड्स करता है। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि खुदावंद का रूह पानियों पे जब जमीन की बुनियाद रखी तो खुदावंद का रूह जमीन से अब्बद से जमीन पर है और तब तक जमीन पर है, और उसका मकसद जमीन पर था चर्च को पैदाइश देना, क्योंकि खुदावंद की मर्जी है कि उसका चर्च हम है, वो चाहता है कि हम में वो रहे। तो खुदावंद का रूह है जो हमें खुदावंद की हुजूरी में लेकर आता है। और तो और खुदावंद ने खुद रूह कुदुस को जमीन पर रखा हुआ है। वो किस लिए रखा हुआ है? कि वो हमारे लिए खुदावंद से शफायत करे, वो हमारे मतलब खुदावंद को हमारे हुजूरी में लेकर आए और खुदावंद की अटेंशन हमारी तरफ करे, ताकि वो जो उसके बच्चे रूह कुदुस, मतलब रूह कुदुस दोनों तरफ काम कर आता है, हम में हो के खुदावंद की तवज्जो हमारी तरफ मतवज्जा करता है। मसीह यीशु जो कि हमारा मीडिएटर है, तो रूह जो है वो हमें बेटा के वसीले से बाप से मिलाता है। तो बाप और बेटा जब मिलते हैं तो रूह कुदुस जनरेट होता है। तो रूह कुदुस जो है वो हमारा हेल्पर है, हमारा टीचर है, हमारा गार्डियंस है, हमारा प्रोटेक्टर है। अब कभी-कभी देखें कि जब हम रूह में चलते हैं तो कैसे-कैसे काम होते हैं। ये रूह कुदुस है जो जिसने हमें मिलाया हुआ है। ये रूह कुदुस है कि जिसमें हम इकट्ठे हैं, क्योंकि ये रूह कुदुस है जो लोगों को इकट्ठा करता है और खुदावंद की खुदावंद फिर वर्शिप पे तख्त नशीन होता है, चाहता है कि हम खुदावंद की परस्तिश को जारी रखें। रूह कुदुस के और बड़े मतलब हर चीज जो हमारी जिंदगी में जो कुछ हमें चाहिए वो रूह कुदुस से हमें मतलब उसके यही मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि
एक रूल कुदूस है जो हमें मतलब बाप का चेहरा दिखाता है, बेटे का चेहरा दिखाता है, हमें उसकी हुजूरी में लेके आता है और हमें हर वक्त हमारी मदद करता है। जब हम दुख और तकलीफ और बीमारी और किसी चीज में हम गिरे होते हैं, तो ये पाक रूह है जो हमें खुदावंद की तरफ लेकर आता है। वो हमारी तवज्जो खुदावंद की तरफ करता है। वो हमें बताता है कि हम अपने निजात की चट्टान को पुकारेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं रूह कुदूस के लिए, और खास करके उसने अपने बेटे को कुर्बान करके हमें ये कसरत से मुहैया किया। तो हम चाहेंगे कि ये जो जो ताकत खुदावंद रूह कुदूस के वसीले से ताकत जो डिवाइन हेल्पर है, हमारा रूह कुदूस जो डिवाइन हेल्पर है, वो सबको मिले। तो हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन सबको ये रूह मतलब अपने रूह की ममूरी दे। तो ये हमारे साथ रूह है, मैं उससे कहूंगी कि वो दुआ करें, फिर रवि वर्शिप करेंगे। आप हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। सवाई हम दुआ में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय परम परमेश्वर, हम आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं। खुदावन खुदा, आप आदर के योग्य परमेश्वर है। आपके प्रेम ने हमें खुदावन जो चुना है परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। खुदा आपने हमें योग्य बनाया है खुदावन। यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के कारण खुदा ये आज का दिन आपने हमारी जिंदगी में दिया परमेश्वर, और तेरी आराधना करने के लिए हम सभी को परमेश्वर आपने इकट्ठा किया है खुदा। हम खुदावन जितने भी तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर जुड़े हैं परमेश्वर, सभी के ऊपर तेरा महान आशीष वाला हाथ हो जाए खुदा बाप। आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदा हमारे सारे बंधन टूटे, परेशानियों के बंधन टूटे यस, खुदा, दुखों के बंधन शैतान टूटे के यीशु। सारे धागे हमारे जो मन परेशानी के बीच में गुजरते हैं खुदावन, हमारे मन को खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह एक शांति से भर दे खुदावन। जैसे दाऊद कहता है कि मैं अंधकार में होकर भी चलूं, मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा तू हमारे साथ है खुदावन। अपनी आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए, होली सेंचुरी के सभी मेंबर्स के लिए मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह, हर एक के ऊपर तेरा आत्मा ठहर जाए। हम सब खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम के गवाह बने, और खुदा तेरे नाम की गवाही दे यीशु मसीह। रूहें बदले खुदावंद। हालेलुया। मेरे खुदा बाप सबकी जिंदगियां बदले यीशु मसीह। हम में तू नजर आए खुदा, हमारे कामों से तू नजर आए, हमारे चेहरे पे तू नजर आए परमेश्वर। हमें अपने जैसा बना। मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह, इतनी भी तेरी महिमा के लिए हमने परमेश्वर आराधना के गीत गाए हैं खुदावंद। हालेलुया। दुआएं कर रहे हैं परमेश्वर। खुदा बाप आपकी बेटी ने जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आपकी बातें जो सिखा रहे हैं खुदा, बड़ी आशीष और बरकत हो। मेरे खुदा बाप आप सब पर अपना फजल बनाए रखें। मेरे खुदा बाप परमेश्वर इन दिनों के लिए हम दुआ करते थे, रोजों के दिन चल रहे हैं प्रभु, जितने भी परमेश्वर तेरे बच्चे खुदा फास्टिंग कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर तेरा आशीष वाला हाथ हो। सचमुच खुदाया हम तेरी कुर्बानी को याद रखें खुदावन, जब तूने हमारे लिए अपना परमेश्वर कीमती लहू बहाया है। मेरे प्रभु परमेश्वर खुदावन, हर वक्त खुदा तो ये याद रखें खुदा, जो तुझे अच्छा लगता है वही काम करे। मेरे प्रभु तुझे सच्ची आराधक पसंद है, हम सच्ची आराधना करने वाले हो जाएं। मेरा खुदा सचमुच खुदा है, हमारी भक्ति परमेश्वर तुझे पसंद आए। मेरे परमेश्वर हम आदर और महिमा देते हैं तेरे नाम को हर वक्त खुदा। हमारी जुबानें तेरी आराधना ही करती रहे। तेरे परमेश्वर यीशु मसीह चरणों में हम बैठे रहे, और खुदा हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर। कोई भी कमी हम में ना रहे, हम पाक पवित्रता की ओर बढ़ते जाएं। और यीशु मसीह जो लोग तुझसे दूर हैं वो सब तेरे नाम के नजदीक आए, और अपनी जिंदगियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपे। सब अपने पापों को छोड़ दें, क्योंकि उधार यीशु से ही है। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपने परमेश्वर यीशु मसीह आपने दुआ करने का मुझे समय दिया खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह आपने अपना प्रकाश हम सभी पर खोला है, मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ। आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया, मांगते आपके मीठे पवित्र यीशु के जलाली नाम में, आमीन। आमीन आमीन। आइए हम खुदावन की प्रस्तश में, मैं रवि और रूप से कहूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तश में और गीत गाएं। हम इसको जारी रखेंगे प्रस्तश और प्रेयर्स की तरह। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कम चल देवी ने, ओ कम रुक देवी ने, दुख हो देवी ने, ओ दुख मुक देवी ने, कम चल देवी ने, ओ कम रुक देवी ने, दुख हो देवी ने, ओ दुख मुक देवी ने,
पर असली में चावान ते ना घबरावेगा, पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा। ओ जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। ओ जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे आपे पावे चट्टियां। जेड़ा इस नबज नू समझू ना मुरझावेगा, ओ जेड़ा इस नबज नू समझू ना मुरझावेगा, ओ जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। भुल्लियां नू सीधे राहे पाउण वास्ते काढ़दा है सानू सुधराउण वास्ते, भुल्लियां नू सीधे राहे पाउण वास्ते काढ़दा है सानू सुधराउण वास्ते, भुल्लियां नू सीधे राहे पाउण वास्ते काढ़दा है सानू सुधराउण वास्ते, भुल्लियां नू सीधे राहे पाउण वास्ते काढ़दा है सानू सुधराउण वास्ते। ओहड़ा तो बाद ओ परमानी बरसावेगा, ओहड़ा तो बाद ओ परमानी बरसावेगा। ओ जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया ओ अगे भी लेके जावेगा। छड्डिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना, छड्डिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना, ओ छड्डिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना, ओ छड्डिया ना करे ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना, जेड़ा वधना चाहुंदा कदे ना छड्ड के जावेगा, ओ जेड़ा वधना चाहुंदा कदे ना छड्ड के जावेगा, ओ जेड़ा इथों तक लेके आया ओ अगे भी लेके जावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। होए ने तजर्बे अमानत दे नाल, यीशु दे प्यार ने तां करदी कमाल, होए ने तजर्बे अमानत दे नाल, यीशु दे प्यार ने तां करदी कमाल, होए ने तजर्बे अमानत दे नाल, यीशु दे प्यार ने तां करदी कमाल,
होए ने तजर्बे अमानत दे नाल यसू दे प्यार ने तां करती कमाल तेरे वैरियां दे ओ सामने मेज बिछावेगा तेरे वैरियां दे ओ सामने मेज बिछावेगा ओ जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा हो जेड़ा इथों तक लेके आया वो अगे भी लेके जावेगा कम चल दे भी ने ओ कम रुक दे भी ने दुख आउंदे भी ने ओ दुख मुकदे भी ने पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा ओ जिड़ा इथों तक लेके आया ओ अगे भी लेके जावेगा हो जिड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा अगे भी लेके जावेगा अगे भी लेके जावेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत मजा आ रहा है, वर्शिप का बहुत मजा आ रहा है। मैं कहूंगी कि आप वर्शिप को जारी रखें। खुदावंद की हुजूरी यहाँ पे है, उसके लिए शुक्र करते हैं। रूह दी खुराक यसू बोल तेरे ने खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक यसू बोल तेरे ने खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक हो वैरी देया डेरिया च दुखा देया घेरिया च गमा दे हनेरिया च तू नाल रहना है हो वैरी देया डेरिया च दुखा देया घेरिया च गमा दे हनेरिया च तू नाल रहना है ओ वैरी कोलों डरीना पैर पीछे तरीना दिल कच्चा करीना तू आप कहना है ओ वैरी कोलों डरीना पैर पीछे तरीना दिल कच्चा करीना तू आप कहना है रूह दी खुराक यसू बोल तेरे ने खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने हो बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जड़े ने रूह दी खुराक अब दी खुदाएं तू अब दी वफाएं तू दिंदा जो शिफाएं तू जद बोलदा ओ अब दी खुदाएं तू अब दी वफाएं तू दिंदा शिफाएं तू जद बोलदा ओ बोल तेरे सुन के मुर्दे भी उठ दे जकड़े भी छुट दे तू जद खोल दे ओ बोल तेरे सुन के मुर्दे भी उठ दे जकड़े भी छुट दे तू जद खोल दे रूह दी खुराक यीशु बोल तेरे ने खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नालों अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक पेड़ में गवाची नू जिंदगी दासी नू रूह मेरी प्यासी नू
तू शांत करे ओ पेड़ मैं गवाची नू जिंदगी उदासी नू रू मेरी प्यासी नू तू शांत करे ओ प्यारे अजीब सी आया तू करीब सी चुकी जा सलीब मेरा मुल परे ओ प्यारे अजीब सी आया तू करीब सी चुकी जो सलीब मेरा मुल परे रूह दी खुराक यसु बोल तेरे ने खुश होके बोल तेरे बोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नाल अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक यसु बोल तेरे ने खुश होके बोल तेरे बोल मेरे ने ओ बोला तेरे आनू रखा दिल विच मैं सोने चांदी नाल अनमोल जेड़े ने रूह दी खुराक हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र इस खूबसूरत खुदावंद के अल्फाज जो हमें जिंदगी बख्शते हैं, क्योंकि खुदावंद खुद ही कलमा है। हमारा निजात की चट्टान वो खुद ही कलमा है, और वो हमारे दरमियान खुदावंद का कलमा बनकर रहता है, हमारे अंदर मौजूद है, वो हर वक्त हमारे अंदर रहता है। हम उसको शुक्र अदा करते हैं, उसके अल्फाज जो इतने पावरफुल हैं, वो हमारी तसल्ली के लिए, हमारी भलाई के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे, फिर हम इसको इख्तिताम पर लेके जाएंगे। तो आप लोग कोई और गीत खुदावंद की प्रस्तुति में कोई और गीत गाएं। जी हालेलुया हालेलुया ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा में हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा जिंदगी च बनया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे हो जावे ईमान मेरा वंगरा चट्टान दे उकाब वांगू उड्डा सदा विच आसमान 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 दे पाक खुदा मैनू बल देने आ मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा पाक खुदा मैनू बल देने आ मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा तेरी पाक रूह वाले कम सदा करा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर करते तरा मैं तेरी पाक रूह वाले कम सदा करा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर करते तरा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर करते तरा मैं जगह होवे तेरी जिथे पैर करते तरा मैं सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा
सदा मेरे अगे अगे चलदा तू जा, मैं हमेशा जिंदगी च बड़िया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बड़िया रवा। दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार 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 सदा पाक साफ रखी तू। मेरे खुदा मैनू पाक बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा पाक साफ दे बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। मेरे खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। 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 हालेलुया।